A very good morning to everyone and welcome to the Utthan session today. So today we are back after a week. So hope you had a very good Diwali and a very good celebration. So today we are in the third session of the topic that we're doing, which is activating, controlling, ruling and handling power. We have Sangeeta Didi joined. Didi, welcome. Om Shanti and over to you. Om Shanti, good morning, all of you, and a very warm comeback after a good holiday. Very happy mood. So you feel you are in heaven? आप देख रहे हो पीछे क्या है? किस किस को लग रहा है ये सीन कौन सा है? So this is the heavenly scene. Diwali means that heaven on earth. That celebration is called Diwali. So therefore, let's today be in heaven, and in heavenly situations, when a person is in paradise, any event, when is it called as a paradise? वो हम देखेंगे. तो इसलिए heaven का मतलब क्या होगा? Just imagine your office to be a paradise. आपको ऐसे लगता है ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं. क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है? What could be the requisites? What could be the condition जिसको हम कहेंगे कि ऑफिस नहीं है, ये तो जैसे मेरे लिए पैराडाइस है. I look forward to. So what could be that conditions? Fast. So before starting, so all the angels who are eligible for the heavenly bliss, they all would wish us happy Diwali by showing themselves. सब एंजल्स प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि हेवन आ चुका है, पैराडाइस है. हम कोई बहुत अच्छी जगह जाते हैं ना, तो आंखें बंद नहीं करते, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं. हाँ, तो एंजल्स की भाषा को समझते हैं ना. एवरीवन हियर इज एन एंजल. सो इसलिए वो एंजल की भाषा समझ सकते हैं, रिक्वेस्ट को भी समझेंगे. ओके, सो व्हाट कंडीशंस in a setup will be called as a paradise. आप सोचो कि मैं ऑफिस नहीं, मेरा एक पैराडाइस है. what could be that? First of all, relationship, the relationship amongst each other, इसको कहेंगे पैराडाइस. अच्छा, पीस कामनेस किस में? दीवारों में या मनुष्यों में? यू राइट, पीस कामनेस सिरेनिटी होनी चाहिए, पर किस में? लोगों में. अच्छा, और पैराडाइस के लिए क्या हो सकता है? सी द पैराडाइस बिहाइंड एंड जस्ट फील कि इस तरह का अगर मुझे पैराडाइस अपने घर में करना है, ऑफिस में करना है, और क्या होगा? द वे वी नो ऑफिस पॉलिटिक्स, वंडरफुल. नो पॉलिटिक्स मतलब ऑनेस्टी, क्लेनलीनेस, स्पष्टता. कंट्रोलिंग होगा या इन्फ्लुएंसिंग होगा? व्हाट कुड बी द स्टाइल? कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग. Inspiring, influencing, wonderful. So this is called a paradise. So today we'll be seeing the paradise behind, and we'll just see how can this office be made as a paradise. So therefore this beautiful topic, controlling but not, and handling. So when I'm able to control, I'm able to handle. But how to control, what to control, that is what we are learning in this month. So control, one is controlling people. सबसे सुखद क्षण, 6-year-old child, एक दिन के लिए उसको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए. शाम को 6 बजे ही इज द एक्टिंग मॉनिटर ऑफ द क्लास. 6-year-old child, just 6 years.
शाम को 6 बजे वो दौड़ता हुआ आता है, फर्स्ट न्यूज क्या सुनाता है आपको? क्या सुनाएगा? यस, एंड आई वॉज मेड द मॉनिटर ऑफ द क्लास. Why so happy? Why so excited to be the monitor? Yes, I was able to control the others. दूसरे को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मीन्स अदर वर्ड्स, दूसरे के ऊपर मैं रूल करा, मैंने रूल किया. कितनी सुखद फीलिंग एक 6 साल के बच्चे को है. एंड द सेम इज कैरी फॉरवर्ड अंटिल द एंड. तो आज हमारी जितनी भी एज है, वी व्हाट वी वांट, हम जॉब भी देखते हैं ना, मैनेजरियल पोजीशन है, whatever. Am I the president, vice president of the team? So why this craving? Because we are very happy controlling others. हमको किसी के बंधन में नहीं चाहिए, पर मुझे सबको कंट्रोल करते आना चाहिए. I should be in the position to control others. So yes, I can be in that position. One is by virtue of a position, by virtue of a personality. So when I am able to control others by virtue of position, क्या हो जाएगा? पोजीशन गई, कंट्रोल गया, एंड यू फील कि जैसे कुछ नहीं है मेरे पास. द रेलवे chairman, we do a lot of seva in the railway board. So he was the chairman that time. Earlier he was in the railway board member staff, and then he became the chairman. So he had a very good connections with us. तो बाद में 2 साल की पोस्ट होती है, 2 साल के बाद फिर वो पोस्ट गई. तो देन बाद में 3-4 महीने के बाद ही वुड कॉल्ड अस कि बोला मुझे अभी पता चला रियल वर्ल्ड क्या है. तो क्या हुआ, पोजीशन में जब हम हैं तो हमारे लिए रियल वर्ल्ड नहीं है, हमारे लिए आर्टिफिशियल वर्ल्ड सामने होता है. और जब पोजीशन में नहीं है तो पता चलता है कि रियल वर्ल्ड क्या है. मतलब जो व्यक्ति इनसाइड है वो मेरे पोजीशन के बाद कैसे मेरे साथ है वो है, और जो व्यक्ति आउटसाइड है जब मेरा पोजीशन है तब वो होता है वैसा. तो जो आउटसाइड है मतलब द वन हु इट्स लाइक इनसाइड कुछ और आर्टिफिशियल है, तो पोजीशन में मुझे मेरे पास है, पावर है मेरे पास. सो पोजीशन है मतलब पावर है, और पावर है मतलब उसकी फ्यूचर मेरे हाथ में है. मीन्स हिज फ्यूचर कुड बी इन स्टेक बिकॉज ऑफ मी, and therefore I am a successful person. This one is this parameter, or second is I am controlling, I'm not controlling but I'm influencing. So what will happen, even आज मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, फिर भी how would I be, the way I will be remembered. So when I'm controlling, so one is when I'm controlling others, so it's like, do I control people? एक हमें देखना है, 2 aspects है इसमें. एक है कि people को हम कंट्रोल करते हैं, और उस कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है when I'm controlling people. So first, I am telling people listen, एंड उनका सुनना मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल, एक कंफर्ट है. एंड उस कंफर्ट में अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ, मतलब लोगों ने नहीं सुना, तो आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम डिस्टर्ब्ड. व्हाई लाइक दैट? बिकॉज आप कुछ मैं कहती हूं, आप सुनते जाते हो, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, कंफर्ट जोन है. तो इसका मतलब
my happiness is dependent on you, on others listening to me. It's okay कि of course इसी स्टाइल से करना है कि what I say people should listen, but the comfort zone बना देना उस listening को, this is where the result is anger. But if I don't make it as a comfort zone, ने सुना या नहीं सुना, my happiness is not dependent on your listening to me. Then what I am doing, I am here. So when my happiness is dependent on you listening to me, and therefore when that happiness, that listening attitude is changed, so my happiness is changed, which it changes to disturbance. इसका मतलब, do I control people or do people control me? क्या हो रहा है? Who is controlling me? People are controlling me, and I am under that impression कि मैं लोगों को कंट्रोल करती जा रही हूँ, मेरी बहुत देखो सुनते जा रहे हैं, लेकिन मेरा उतना ही, इसलिए जितनी बड़ी पोजीशन कभी कभी हमको मिलती है उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता है. ये किसने अनुभव किए? पोजीशन भी मिला लेकिन गुस्सा भी बढ़ता गया. बिकॉज माई हैप्पीनेस, this was the equation going on. Happiness was dependent on how you listen to me, how much you listen to me. और फिर क्योंकि मेरा हैप्पीनेस उसमें था, तो इसलिए टू एक्वायर दैट हैप्पीनेस आई यूज्ड ऑल द मीन्स, कि किसी के बारे में क्रिटिसाइज करो, किसी को लेग पुल करो, किसी को ऊपर चढ़ाओ, किसी को नीचे गिराओ. तो पीएचडी कर सकते, पुल हिम डाउन. क्यों? क्योंकि मेरा हैप्पीनेस वाज डिपेंडेंट ऑन पीपल लिसनिंग टू मी. सो नाउ इफ वी डू द अदर वे राउंड, लिसनिंग करना है, पीपल शुड लिसन टू मी, बट फर्स्ट इज my happiness is not dependent, first of all, on you listening to me, and secondly, अगर my happiness not dependent on if people do things my way, and more important is being a balance of being master and a child. मैंने हमारे में बहुत एक अच्छा बोला, मालिक भी बनो, बालक भी बन जाओ. जब आपको अथॉरिटी से कुछ बोलना है, कुछ करना है, कराना है, मास्टर, बी अ मास्टर. बट व्हेन you have given your opinion, master while giving your opinion, and be a child while accepting the decision. आपने अपना ओपिनियन दे दिया, उसके बाद डिटैचमेंट कि ऐसा ही होना चाहिए, जैसे मैंने कहा वैसे मानना चाहिए, क्यों नहीं मानते? सो दिस अटैचमेंट विथ माय ओपिनियन is where the control on the self goes away and you're just trying to control the people. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं है, मैं आपके माइंड को कंट्रोल करना चाहती हूँ. मेरी अपनी गाड़ी कंट्रोल में नहीं है और मैं आपकी गाड़ी जो दूसरे जहां चल रही है उसको कंट्रोल करना चाहती हूँ. तो दोनों की गाड़ी कंट्रोल में नहीं है और दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं. ये स्टेट चल रहा है. तो therefore now you are not listening to me. मैंने अपना ओपिनियन दे दिया. जैसे अभी देखो, हम चार लोग बैठे हैं, प्रोजेक्ट है,
we are discussing, and then I came up with a very good idea. बहुत अच्छी आइडिया थी कि ऐसा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उस आइडिया को सोच सोच के फिर मैंने पूरा सोच भी लिया कि कैसे इसको करना है, और नाउ आई एम प्रेजेंटिंग दैट आइडिया बिफोर द people, all of you, right? Suppose Sonal Ben is doing that idea, and that idea is being presented. अच्छा, अब आपने बहुत अच्छे से सोचा, अच्छे से प्रेजेंट किया, अब नाउ द ग्रुप रिजेक्टेड दैट आइडिया. नहीं नहीं, आपने सोचा ऐसे करो, नहीं नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है, ग्रुप में किसी ने उसको अप्रूव नहीं किया. फर्स्ट रिस्पॉन्स, रिएक्शन इनसाइड क्या आएगा, कौन सा रिएक्शन आएगा? अंदर स्टेटमेंट्स बताओ, क्या क्या स्टेटमेंट्स आएंगे. पहला स्टेटमेंट, अच्छा टाइम और लगेगा काम में. टाइम और लगेगा. अच्छा, दूसरा, अब मतलब फिर सोचना होगा कि क्या ग्रुप कंसेंसस के मुताबिक क्या सबको पसंद आएगा और सबकी किस में सहमति होगी. कि किसमें आपने बहुत अच्छे से सोचा था, आपने सोचा ये तो दी बेस्ट आइडिया है, ये तो इम्प्लीमेंट, ये अगर सुनते ही लोग तो मेरे मेरे प्रेज, मुझे बहुत प्रेज करेंगे, बोलेंगे क्या फर्स्ट क्लास है, और हुआ पूरा कॉन्ट्रेरी. वो इतनी बार हो चुका है कि अब उस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता. ओह वंडरफुल. तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट की हैव बीन, यू आर टेकिंग द डिसअपॉइंटमेंट इन योर स्ट्राइड. कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा, तो वन इज दिस रिस्पॉन्स कि अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दूसरा एक और ये रिस्पॉन्स होता है कि ठीक है, अब मुझे आइडिया मुझे बताना ही नहीं है, मुझे कुछ अपना कंट्रीब्यूट करना ही नहीं है, लोग ने पूरा रिजेक्ट कर दिया मुझे, राइट? अब तीसरा, मुझे तो अब कुछ बोलना ही नहीं है, आगे से कुछ भी नहीं बोलूंगी. ऐसा भी हो सकता है रिस्पॉन्स. क्यों ऐसा हुआ कि अब मुझे साइलेंट रहना है? बिकॉज मैंने जो ओपिनियन दिया था, उस ओपिनियन का ये रिजल्ट होने ही वाला है, वो उससे मेरा अटैचमेंट था. तो इसलिए जैसे ही वो व्यक्ति, वो चीज छीनी गई, मेरा डिजेक्शन. सो वॉज माई आइडिया द बेस्ट आइडिया ऑफ द वर्ल्ड? दिस इज कॉल्ड ईगो. ईगो मतलब मेरा उस ओपिनियन से अटैचमेंट, और इसलिए डिजेक्शन हुआ और एंगर आया. तो एंगर का कारण क्या था? इट इज नॉट पीपल आर लाइक दैट, लोग ऐसे हैं, लेकिन मेरी आइडिया से अटैचमेंट. सो देयरफॉर बीइंग अ मास्टर, गिव योर आइडिया. और दूसरा, when it comes to acceptance, accept it as if, accept the decision, being a child while accepting the decision. मतलब अगर लोगों ने मेरा नहीं भी सुना, तो आई एम ओपन टू व्हाट others want to share about it. जैसे बच्चे बहुत अच्छा आइडिया दे देता है, अच्छा फिर नहीं मानता है, तो ही स्टिल स्टेबल. तो बीइंग स्टेबल even after giving the opinion. So I am ready to accept the okay of my decision, and अगर कोई okay नहीं भी करता है तो भी मैं ready. This is called being a master and being a child. तो मालक बन के राय दो, और जब राय एक्सेप्ट होनी है तब बालक बन जाओ. नॉट पर्सनल कि भाई नहीं मानी, अब मुझे नहीं देना. अच्छा नहीं मानी तो मेरा एक पर्सनल अटैक कर दिया, मुझे मुझे लेट डाउन किया तुमने मेरा नहीं मान के. ये जो फीलिंग्स है, दिस इज कॉल्ड ईगो. तुम बोल भी दिया, नहीं भी माना, आई एम ओके विद इट.
I presented what I felt was the best. It is not necessary कि that is the best. मेरे हिसाब से ऐसा ठीक था. तो being neutral to the decisions, to the result of the idea, of the opinion, this is called being a child. So being a child while accepting the decision. Therefore, it is called there are no perfect relationships. It's how we accept the imperfections that makes it perfect. तो कोई भी imperfection है, लेकिन उसको कैसे accept करते हैं? So now second imperfection, dealing with mistakes. Controlling में हम क्या करते हैं? एक है लोगों को बोलना, मेरी बात मानी जाए. दूसरा लोगों की मिस्टेक से डील करना. अब हम कैसे डील करते हैं? देखो, अब किसी ने कुछ मिस्टेक की, पर्सनल अटैक. एक है ऐसे की थी, वन इज यू आर लाइक दैट, यू शुड हैव नॉट डन दिस, यू. फिर और क्या क्या स्टेटमेंट होता है? तुमको कितनी बार बोला, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, तुम तो ऐसे ही करते हो, तुमको बोल के कुछ भी फायदा नहीं है, तुम तो आगे और बोलना है. आगे कितने स्टेटमेंट हो सकते हैं? अंदर, इवन इफ मे बी बाहर हम नहीं बोलते, लेकिन अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो जाते हैं. क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं? तुमको बोल के कुछ फायदा नहीं, तुम तो चीखने घड़े हो. नो, inside we think all this. These are our vibrations. So what I am doing, गलती है. One is ऐसा आपने किया, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए. So I'm pinpointing that particular situation or that particular habit. और एक है रिजेक्ट करो ऐसा पर्सन कि तुम तो कभी सुधरने वाले नहीं, तुम तो हो ही ऐसे. So what is this all? This is my, because I am not able to control myself, I am not able to control this all negative statements in my mind. Therefore, I feel कि दुनिया खराब है, वो व्यक्ति खराब है, क्योंकि मैं इस स्टेटमेंट्स को स्टॉप नहीं कर पा रही. So therefore now when we do this, तब हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली क्रिटिसाइज कर रहे हैं. It's like attacking the person, and when you're attacking others feeling low, और उसके कारण उसकी एफिशिएंसी डाउन होगी. मेरे को मिस्टेक्स बताने का मकसद क्या है? What do I want when I'm pinpointing the mistakes in my team? क्या चाहिए था मुझे? Why do I point the mistakes? सभी एंजल्स बताए, जो एंजल्स रूप में है वो बताए. I want, why do I pinpoint the mistakes? I want change, yeah, so that next time they don't do that mistake again. To correct them, I want the change. Change is a positive energy or a negative energy? Positive energy. तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, राइट? और नेगेटिव रॉ मटेरियल्स दो. प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, रॉ मटेरियल्स खराब, फिनिश प्रोडक्ट बहुत सुंदर क्वालिटी हो. पॉसिबल? सो इफ आई वांट टू करेक्ट, तो इसका मतलब मुझे इनपुट्स भी तो पॉजिटिव देने पड़ेंगे. सो व्हाट विल हैपन? इस समय एफिशिएंसी डाउन, और वो द इंस्ट्रक्शंस, अब आप जब उसकी एफिशिएंसी, उसका मन खराब हो गया, इंस्ट्रक्शंस मानने वाला कौन है? मन या व्यक्ति? द बॉडी इज नॉट गोइंग टू, द माइंड हैज टू एक्सेप्ट दैट इंस्ट्रक्शंस. और वो माइंड
कि माइंड ही लो हो गया, और इंस्ट्रक्शंस देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एंड मिस्टेक्स आर नॉट इम्प्रूव्ड। तो देयरफॉर वन इज, तो इसलिए अच्छा उसने ठीक नहीं किया, उसने गलत किया, कैन आई से कि ठीक है ऐसे तो नहीं कर, ऐसे आपने किया, लेकिन इसको ऐसे नहीं ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता, और आगे से अब ऐसे करो। सो पिन पॉइंटिंग बट बीइंग assertive, not pinpointing but being angry and rejecting the whole व्यक्ति। और कभी कभी हम कहते तुम कभी अच्छा श्राप दे देते हैं। कौन सा श्राप देते हैं? तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, मुझे नहीं लगता है। और भी और थोड़ा और कंफर्मेशन दे रहे। सो इतना नेगेटिव करके हम चाहते कि वो सुधर जाए, अंदर में क्या सोचा, तुम सुधरने वाली नहीं। सो देयरफॉर गिव द मिस्टेक्स बट विथ राइट एनर्जी, और एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंस्ट्रक्शंस। किस भाव से मैं बोल रही हूं, क्या बोल रही हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस फीलिंग से मैं बोल रही हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। और जब वो फीलिंग पावरफुल होती है तो जो इंस्ट्रक्शंस है ना वो रजिस्टर हो जाता है, और अगले बार कहीं ना कहीं मे भी एक दो बार और मिस्टेक हो भी जाए, वो इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मेरी एनर्जी को मैंने लो, उसकी एनर्जी को लो कर दिया दूसरे की, उसके बाद कैन आई एक्सपेक्ट हिम टू चेंज? तुम तो ऐसे हो, तुम तो कुछ काम के नहीं हो, तुम बहुत, और फिर हम चाहते कि वो एकदम चेंज हो जाए। पॉसिबल? अच्छा वो चेंज हो भी जाएगा, लेकिन वो चेंज कौन सा है? इट्स बिकॉज ऑफ योर पोजिशन। आई कुडंट से एनीथिंग, तो आपके सामने मैं चेंज हो गई। डू आई वॉन्ट द चेंज परमानेंट, और डू आई वॉन्ट द चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पोजिशन? फिर हम कहते हैं कि देखो मैं जब ऑफिस में जाता हूँ ना, सब मेरे से डरते, मेरी सब मानते, दिस इज माई सक्सेस रेट। बट जैसे ही वो पीछे हुए, देर आर मेनी, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स है। सो आई एम कंट्रोलिंग people by position without having any control over myself. So control, but first controlling myself. अच्छा उस समय मुझे क्या करना है जब किसी की मिस्टेक हुई? उस समय अगर मैं खाली इतना सा याद, ये वाले सारे स्टेटमेंट्स जो है ना वो मैं नहीं बोलूं अंदर से, और पता है अच्छा उसने 10 बार भी मिस्टेक की, पर मेरे ये स्टेटमेंट नहीं है, पर मेरे स्टेटमेंट है कि नहीं ऐसे नहीं, आप ऐसे करो। हाँ अगर ऐसे करेंगे तो दिस वुड बी द रिजल्ट, सो आपको ऐसे करना है। सो आई इंस्ट्रक्ट देम बट विथ राइट एनर्जी, बताओ भी बट विथ राइट एनर्जी। एंड दैट एनर्जी अगर राइट है तो मेरी भी पॉजिटिव एनर्जी, उसको भी मैंने पॉजिटिव दिया, आई एम हेल्पिंग हिम टू करेक्ट। किसी कोई गिर जाता है, नाउ सिंपल सिचुएशन है, कोई गिर जाता है चलते चलते, पर्टिकुलरली उस सिचुएशन में आपने उसको मना किया था कि वहां मत जाओ, जाओगे गिरेगा, नहीं माना उसने, गया, गिर गया। आप पीछे से आ रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? पीछे से आ रहे हो, देख रहे हो आप, फर्स्ट स्टेटमेंट है
देखा, मैंने बोला था ना। अब उस समय उस व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको उसको जो गिर जाता है, सपोज यू आर द पर्सन हु हैव फॉलन डाउन, उस समय द फर्स्ट स्टेटमेंट आपके मन में क्या आ जाता है कि मैंने फॉलो नहीं किया, उसने कहा था। आएगा कि नहीं आएगा? कितने भी हमारे इक्वेशंस खराब है, लेकिन ये स्टेटमेंट आएगा। तो वो स्टेटमेंट तो मैं ऑलरेडी बोल रही हूं जो गिर गया है। उस समय उसको क्या चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। देखा, मैंने बोला था ना। तुमको कितनी बार बोलते तुम वही करते हो। ये एनर्जी उसको नहीं चाहिए उस समय। उस समय वो ऑलरेडी दर्द में है। दूसरा, आपको फॉलो नहीं किया वो दर्द और भी है। उस समय क्या चाहिए उसको? राइट एनर्जी। उठो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से ठीक करना, उठो। एक सिंपल स्टेटमेंट चाहिए। अगर एक है मैंने ऐसे ऐसे कहा और उठाया, तुमको कितनी बार बोला, तुमने समझते नहीं हो, और उठा भी रही, उस समय उसको क्या आता है? आई डोंट वांट टू टेक हिज हेल्प नाउ। और मोर इम्पोर्टेंट, उसको लग रहा है कि आज तो हो गए, आई एम नॉट गोइंग टू टेक। तो इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग हिज मिस्टेक कि he has not obeyed your order, he is thinking, he has concluded कि मैं राइट, मुझे, तुम रॉन्ग हो। मैं राइट हूं या नहीं रहा हूं, लेकिन तुम रॉन्ग हो, बिकॉज वट एवर वर्ड्स वी वर स्पीकिंग वॉज नॉट विद द राइट एनर्जी। एंड वही उस समय इट वुड हैव बीन द अदर वे अराउंड कि ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान रखना आगे से, चलो हो गया, फिनिश, नेक्स्ट टाइम। Cut short and doing this and helping the person to come up. क्या हो जाएगा उसमें? क्या याद रहेगा? यस, आगे से मुझे ठीक करना है। उन्होंने कहा, मैंने नहीं किया, फिर भी उन्होंने मुझे हेल्प किया। आई विल प्रॉमिस कि नहीं, आगे से मैं नहीं करूँ। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग, so what I am doing here, I am motivating others. So I am actually empowering the person. Influence, so influence, not just control, empower, not just being powerful over them. तो हम कंट्रोलिंग मतलब ही एम्पावरिंग। कंट्रोलिंग डजंट मीन कि यू आर पावरफुल ओवर देम। यस, सो दैट इज कॉल्ड मिसयूज ऑफ द अथॉरिटी, एंड दैट इज कॉल्ड यूजिंग द अथॉरिटी, and therefore influencing the people. So one is to control others, and the other is when I am controlled. ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि क्या है, मेरी मजबूरी है, नो आई हैव टू बी, अदर्स आर कंट्रोलिंग मी। अब इसमें भी हमको देखना है, एम आई बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स? हमको कोई बात नहीं अच्छी लगती लेकिन करना पड़ रहा है, तो हम सोचते कि देखो मेरी मजबूरी है। नो, एम आई बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स? लेट अस डिसाइड। आई चूज टू, पीपल चूज टू लिसन। व्हाई? अगर मैंने अब नहीं सुना, ऑफिस में हूं, मैं उनके नहीं सुनती हूँ, हम सोचते मेरी मजबूरी है, क्या करे, पैसा चाहिए, ये चाहिए, नहीं तो मेरा फीडबैक अच्छा नहीं देगा, मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग, इफ आई डोंट लिसन, आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। क्या क्या होगा अगर मैं नहीं चूज करती हूँ? तो अगर मैंने नहीं सुना तो मेरी प्रमोशन जाएगी,
मेरा फीडबैक अच्छा नहीं होगा, मेरे लिए रॉन्ग कमेंट्स होगा, मेरी पे नहीं बढ़ेगी, एक्सेट्रा. तो therefore, why do I listen to others, to my boss, to my seniors? Because I don't want these 4 things, right? So, am I choosing to listen, or it is my majburi? Am I choosing to listen? Because I'm afraid I don't want these all 4 things. So it's my choice to listen. I should never live the life in a victim lifestyle. क्या करे, सुनना पड़ता है. मेरे को इस बात से, मेरी सैलरी से का मुझे कंसर्न था, तो मेरे को मेरे परिवार का मुझे कंसर्न था. सो आई एम लिसनिंग टू देम. हाउ कैन आई से दैट they are controlling me? I have chosen to listen because I know this is the impact. So never live a victim lifestyle. क्या करे, मजबूरी है, नहीं. बिकॉज मुझे सैलरी इज प्राइम इंपॉर्टेंस, मुझे ये चीज प्राइम इंपॉर्टेंस है, एंड देयरफॉर आई चूज टू डू इट. सो नाइदर आई कंट्रोल अदर्स नॉर आई एम बीइंग कंट्रोल्ड. सो व्हेन आई डू दिस, तो मेरा लाइफ कैसा होगा, अपने हिसाब से हम जीते. सो देयरफॉर सेल्फ कंट्रोल इन ईदर वेज, उसमें भी खुद के ऊपर हमने अपने ऊपर वर्क किया. व्हेन आई एम कंट्रोलिंग अदर्स, तो सेल्फ कंट्रोलर कैन हैंडल अदर्स वेरी एफिशिएंट. चाहे मैं अगर मैं सबऑर्डिनेट की पोजीशन में हूं, चाहे मैं कंट्रोलर की पोजीशन में. But the first is I have to control my. So when I control myself, even if I have to listen to you, I will be happy doing the job. नहीं तो मजबूरी करते करते मैं जॉब तो कर रही हूँ, पर एक एफिशिएंसी डाउन कर रही हूँ. और जब मैं अपनी एफिशिएंसी डाउन करती हूँ ना, थोड़ा सा कोई कुछ बोलता है, मुझे इमीडिएटली गुस्सा आएगा. मुझे फिर इमीडिएटली आएगा, छोड़ो, आई डोंट वांट टू, और आई विल जस्ट स्विच ऑफ. चेंज करते जाओ. तो व्हेन आई एम चेंजिंग, मेरी नेचर है, इधर नहीं ठीक हुआ चेंज करो, इधर नहीं ठीक हुआ चेंज द डिपार्टमेंट, चेंज द पर्सन, चेंज द सेटअप, एंड फाइनली चेंज द कंपनी. व्हाट आई एम डूइंग, मेरी सहन शक्ति को मैं यूज नहीं कर रही, मैं बढ़ा नहीं रही. एंड देयरफॉर मेरा संस्कार क्या होता है, चेंज थिंग्स बट नॉट चेंज माई सेल्फ. आई चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ. एंड देयरफॉर पीपल, आज बहुत जल्दी डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता है ये चेंज करो, कुछ भी नहीं होता है लोगों को चेंज करो, मेड्स को चेंज करो, लेकिन कभी ये नहीं सोचते खुद को मुझे चेंज करना है. और इसलिए हम रिलेशनशिप बहुत जल्दी चेंज कर लेते हैं. हम सोचते फॉरगेट, डिवोर्स रेट बढ़ रही है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू टॉलरेट, दे आर नॉट एबल टू, सहन नहीं कर सकते. और जब नहीं कर सकते, एंड इसलिए लाइफ एक खालीपन है. हम सोचते क्या क्या फर्क पड़ता है, जीवन में पूरा खालीपन है. तो जितना हम एडजस्ट करते हैं, स्वयं को पावरफुल बनाते हैं, अपनी वे से डिसाइड करें, वी आर एबल टू रूल आवरसेल्फ. एंड व्हेन आई एम एबल टू रूल आवरसेल्फ, नो वन कैन रूल मी. People can rule me because I'm not able to rule myself. And I do things with knowledge, with understanding. अगर मैं इधर सुन भी रही हूँ, क्यों सुन रही हूँ, क्योंकि मेरे को मेरी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मुझे कुछ नहीं कर रहा है, मैंने डिसाइड किया. आई विल नेवर ब्लेम अदर्स इन माई लाइफ, क्योंकि वो ब्लेम के संस्कार यहाँ शुरू होते हैं कि उनके कारण आज मुझे चुप रहना पड़ा, उसके कारण. नो ब्लेमिंग, आई डू विथ माई. तो बीइंग सेल्फ कंट्रोलिंग. तो क्या करेंगे अभी थ्रू आउट द वीक,
How do I do? तो first is अपने आप को control. My approach will always be balance of master and child. कुछ भी बात में मास्टर बन के करना भी है, लेकिन फिर चाइल्ड बन जाना. इनोसेंस. सो इंटेलिजेंस और इनोसेंस का बैलेंस इज कॉल्ड बेस्ट कंट्रोलर. और दूसरा है, कोई भी मिस्टेक हो, आई विल फर्स्ट कंट्रोल माई सेल्फ एंड देन हैंडल अदर्स. अपने ईगो को, अपने एंगर को मुझे कंट्रोल करना है टू एफिशिएंटली हैंडल अदर्स. है इजी. दिस वुड बी द स्मॉल होमवर्क. करेंगे सभी. वर्थ है, होमवर्क इज वर्थ. तो अपने आप को, हाँ, तो ये देखे, कुछ भी बात हो जाए, अपने एंगर को मुझे कंट्रोल करना है. बाद 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं. जस्ट अपने आप को सब बातों से फ्री करें. अपनी सारी सिचुएशंस को देखें. मैं किसी के अंडर में नहीं हूं. मुझे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, कहाँ जा रहा है, लेकिन मैंने चूज किया. I have chosen and therefore I am doing it. I will first control myself. परमात्मा से एनर्जी ली. अपने आप को शक्तिशाली बनाया. एनर्जी को पूरा अपने पॉइंट ऑफ लाइट में जैसे फिल हो गई है. और विद दिस फिल्ड एनर्जी आई गो टू द ऑफिस. कुछ भी बात हुई, आई एम फुल इनसाइड. आई टेक इट पॉजिटिव because I have the energy of the Supreme. Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. Thank you for the session today, and thank you, everyone. Let us practice the homework and then meet next week. Have a good day today and the week ahead. Om Shanti. Thank you, everyone.